Good morning students, welcome in BLS Maths E-classes. So today we are going to start our chapter number 7 and exercise 7.5. In this exercise we are going to learn about the parallel lines, perpendicular lines and intersecting lines. So first important is parallel lines. Parallel lines means will never touch. If we are having two lines and they are not meeting to each other at any point, so these are called parallel lines. यानी कि this is an example for parallel lines. Yes, यहाँ भी same distance होगा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा, यहाँ होगा 15 है तो यहाँ भी 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, यानी ये दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो ये हमारी कौन सी लाइंस होती है? पैरेलल लाइंस। और इनका जो साइन होता है वो किस तरीके से इंडिकेट करता है? लाइक दिस। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, नेक्स्ट इज perpendicular line. Perpendicular lines means the two lines that intersect each other at a 90 degree angle. अगर two lines जो हमारी intersect कर रही हैं और they are making a 90 degree angle, so these are called perpendicular lines. So you can see here, तो we are having two lines. Okay, एक लाइन हमारी ऐसे फॉरवर्ड जा रही है and this is going to this side and they are intersecting to each other at a point of 90 degree. Yes, they are meeting at a 90 degree. So this is called perpendicular line. अगर सपोज रहे यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे है आपका X एंड यहाँ पे आपका है Y, तो आप इसको कैसे नोट करोगे, कैसे लिखोगे? AB is, yes, you can write here, AB is perpendicular, यानी ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर खड़ी हुई है। Yes, it is stand on कौन सी लाइन पे? X Y. It is perpendicular on X Y. ठीक है, तो this is a symbol. Yes, this is the symbol to indicate about the perpendicular lines. So this is a symbol of perpendicular lines. ठीक है? Yes. अपोजिट टी, यस उल्टा टी, यानी एक लाइन ड्रॉ किया एंड उस पे ऐसे कर दिया, तो दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? यस, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। यस, विल नेवर, यस विल क्रॉस, यानी ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं बट डू नॉट मेक अ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल। ये एक दूसरे को क्रॉस तो कर रही हैं बट दे आर नॉट मेकिंग अ राइट एंगल। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। सो लाइक दिस, यस, ये यहां इधर जा रही है एंड ये इट इज गोइंग टू दिस साइड, सो इट इज बिगर एंगल, ये स्मॉल है, ये स्मॉल, इट इज आल्सो बिगर, तो दे आर नॉट मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। तो ये हमारी लाइंस कौन सी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट question number 1 of exercise 7.5. so it is, we are having three figures. Yes, so first figure is like this. So these lines are, yes, they are not meeting to each other, so parallel line होगा, so we have written here parallel lines. Now second B is like this. Yes, so कौन सा लाइन का ये, कौन सी लाइन है हमारी? These are intersecting line, यानी ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं but they are not making a 90 degree angle. Next is C part. So C part is, yes, it is, this figure is like this. तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल हो रहा है, so it is perpendicular lines. So these are our perpendicular lines. तो आपने perpendicular आंसर में लिख दिया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग राइट द नेम ऑफ द परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, उनके आपको बताने हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बताना है, पैरेलल लाइंस आपको बतानी है। ठीक है, सो दिस इज PQ, दिस इज RS एंड दिस इज XY। ठीक है, ठीक है, इसमें से आपको आंसर्स बताने हैं। सो वी कैन सी हियर, we are seeing here PQ. Yes, PQ is perpendicular to XY. तो आपने पहले perpendicular lines ले ली हमने, तो PQ is perpendicular, यानी वो स्टैंडिंग है किस पे? XY पर, XY पर। तो this is our first perpendicular line. Next is RS is perpendicular to XY. RS भी आपका perpendicular है, RS
लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, किस पे है, x/2. सो इट इज these are our two perpendicular lines and parallel lines. Next it is asking about the parallel lines. So parallel line कौन सी है हमारी, अगर आप इसको x/2 को हटा दोगे तो you are see here, you will see your lines like this. Yes, so this is P and this is R, PR. ठीक है, so PQ एक तो लाइन हो गया आपकी PQ is parallel, ये आपका सिंबल हो गया. Yes, यहाँ पे आपका सिंबल किसका था, परपेंडिकुलर का, and this is the sign of parallel. तो PQ is parallel to RS. ठीक है, RS. ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने बी में किया, परपेंडिकुलर निकाला. EF is perpendicular to AB. Okay, now CD is perpendicular to EF and parallel निकालेंगे. AB is parallel to CD. So these are our parallel lines. Now next is yes, polygon figure. Yes, polygons, three side figure. Polygon is triangle. It is having three sides and three vertex. ऐसे ही आपका quadrilateral कितना होता है, 4 sides and 4 vertex. Pentagon 5 sides 5 vertex. Hexagon 6 sides and 6 vertex. Heptagon 7 sides and 7 vertex. Octagon 7 sides, sorry 8 sides 8 vertex. And Pentagon it is having 9 sides and 9 vertex. तो ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो. Now triangles. Yes students, we are having two types of triangles. Yes, देखिए एक तो होते हैं हमारे triangles on the basis of side and the second is on the basis of angles. So let's start with triangles. Now student, we are having triangles. Now we are having two types of triangle. First is on the basis of sides and the second is on the basis of angles. हमारे पास two triangles हो गए, एक तो बेसिस ऑफ साइड पे, उनकी साइड पे डिपेंड करेगा. तो ये 3 टाइप के होते हैं हमारे एंगल, एंड ये हमारे एंगल्स के ऊपर डिपेंड होंगे. ठीक है, ये भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. तो देखते हैं. लेट्स सी स्टार्ट विद इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके नाम में ही इक्विलेटरल मतलब इक्वल, यानी जिसकी साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. दिस टाइप ऑफ एंगल्स हैव इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, सो ये साइड और ये साइड तीनों ही बराबर होंगी. सपोज इट इज 10, तो ये भी आपके 10 होगी और ये भी 10 होगी. तो इस टाइप के एंगल्स कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल. सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. इट इज ए ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. यहाँ पे हमारी 2 साइड्स जो होंगी वो इक्वल लेंथ पे होंगी, यानी दिस इज इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस वन विल बी डिफरेंट. अगर ये यहाँ पे 8 है, ये भी 8 होगी एंड इट विल डिफरेंट, यानी कि 10 या 11 या 5 भी हो सकती है, तो यानी डिफरेंट होगी. इसमें हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं. नेक्स्ट इज स्केलेट ट्रायंगल. यहाँ पे ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यानी कि तीनों साइड हमारी क्या होंगी, डिफरेंट होगी. कोई 5 है, कोई 6 है, तो कोई 7 होगी. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. हमारे पास ट्रायंगल्स है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. एक्यूट एंगल ट्रायंगल. देखिए इसको नाम को ब्रेक कीजिए. एक्यूट स्मॉल एंगल्स, एंगल you know very well about angles, and triangle, यानी कि a triangle in which all the angles are acute less than 90 डिग्री, यानी जिसमें तीनों एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री से लेस होंगे. तो ये इस टाइप के एंगल्स हमारे कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. और देखिए इन तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 180. अगर ये 180 नहीं आ रहा, इट मींस इट इज रॉन्ग. तो देखिए यहाँ पे 30 एंड 70 100 हो गया, 100 एंड 80 180. ठीक है, सो इट विल ट्रायंगल. ठीक है, नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट, यू नो अबाउट दिस. राइट मतलब 90 डिग्री. इफ द वन एंगल इज 90 डिग्री एंड टू आर डिफरेंट, यानी कि वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, इनमें से एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए, तो वो हमारे कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये यहाँ पे होगा आपका 90 एंड अदर विल 45 या 50 या 40 लाइक दिस, ऐसे भी हो सकते हैं. तो देखिए इनको ऐड कर देते हैं, 50 और 40 90 और 90 80, तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, कैसे पहचाना, 90 डिग्री से. ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल.
ट्राइंगल इज हैविंग वन एंगल, यानी उसमें से वन एंगल कितना होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए, तो वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये देखिए यहाँ पे ये एंगल कितना है, ऑब्ट्यूज 140 डिग्री, 140 डिग्री किस में आता है, ऑब्ट्यूज में, एंड रेस्ट टू आर एक्यूट एंगल। तो ये हमारे कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे इन एक्सरसाइज 7.6 में। सो प्लीज नोट इट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर class register, okay, and do your work completely. Stay home, stay safe, bye bye.